মর্নিং দোস্ত, ওয়েলকাম টু দ্য আইকে স্টাডি ফোর্স একাডেমি। আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে নাম্বার সিস্টেম। যেহেতু এসএসসি জিডির জন্য আমাদের হিন্দি এবং ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ হবে, তোমাদের সব থেকে সোজা হবে হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজে করা। কারণ হিন্দিতে সব থেকে নম্বর বেশি, হিন্দি সব থেকে সোজা এবং ইংরেজির মতো অত কঠিন নয়। সেই জন্য হিন্দিতেও অঙ্কগুলো করতে হবে। অনেকে ভাবছে যে আমি ইংরেজিতে অঙ্ক করলে ভালো হয়, কিন্তু হিন্দি ভাষাতে যদি ভালো করে না শেখো তাহলে হিন্দি পাঠটা পড়তে অসুবিধা হবে। এবং সব থেকে বেশি সমস্যা সেটা হচ্ছে সময় কম। কি কম? সময় কম। কারণ আমাদের হচ্ছে যে আমাদের মাত্র 60 মিনিট, সেখানে কিন্তু অনেকগুলো প্রশ্ন অর্থাৎ 80 কোশ্চেন্স আসবে। তো 60 মিনিটে 80 কোশ্চেন্স অ্যাটেন্ড করা, যেখানে 20টা ম্যাথ এবং 20টা জিআই থাকবে, সেখানে কিন্তু কষ্টসাধ্য, দুরন্ত স্পিড লাগবে। সেই স্পিডে যদি পড়াটা যদি অসুবিধা হয় তাহলে তো আরো অসুবিধা হবে, তাই না? সেই জন্য সব কিছু হিন্দিতে করো। এবার বলবে তুমি, স্যার আমি তো হিন্দি জানি না, হ্যাঁ কি করে হবে, বুঝি না। বোঝার কিছু দরকার নেই, কিছুদিন সাথে থাকলেই শেখা যাবে। বোঝা গেল? কিন্তু সাথে থাকলে অটোমেটিক শেখা যাবে, এটা হচ্ছে বিষয়। আমাদের প্রথম এসএসসি জিডির একটা স্টাইল আছে যে ওরা নাম্বার সিস্টেম অঙ্ক দেবি একদম। সে গুণ যোগ ভাগ বিয়োগ যে এগুলো বোঝো, সেগুলো কিন্তু নাম্বার সিস্টেমে অঙ্ক দেবে। আমরা সরাসরি অঙ্ক দিয়ে শুরু করব। যে ওয়ার্ডগুলো চিনতে অসুবিধা হবে সেগুলো আমরা আগে ব্যাখ্যা করে নেব, রাইট? আমরা কিছু মান আমরা লিখবো, আমরা তোমাদেরকে বলবো। আমি জানি যে তোমরা জানো না, সেইভাবে ক্লাস করাবো। ধরে নাও প্রথম শব্দটা আমরা শিখব। এই শব্দটাকে বলা হয়, বলো কি লেখা আছে? হ্যাঁ, একাই, তাই না? একাই মানে হচ্ছে যে আমি যদি আরেকটা লিখি, দেখো ভালো করে। কি লিখলাম? दंत नय तय सीम की अंतिम। अंतिम मतलब क्या होता है? हाँ, एकदम एंड वर्ड, दैट्स मीन यूनिट डिजिट। हुइज इट? यूनिट डिजिट। आज के मेनली আমরা এই একাই বা अंतिम, जो अंतिम डिजिट होता है उसके बाद बात करेंगे। ये इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है? अब दूसरा वाला ऐसा कुछ मान, আমরা বাংলা আগে লিখি স্থানীয় মান, है ना? স্থানীয় মান আইডিয়া আছে কারো স্থানীয় মান সম্বন্ধে? बताओ। हाँ, अब हिंदी तो स्थानीय मान ही बोले। हिंदी की बोला है स्थानीय मान ही बोले। कैसे लिखता है आप देख लो। है कि नहीं? है ना? अब लिखते हैं, बाद में बताते। उसके बाद लिखेंगे कौन सा वर्ड है? वाह, ये लिखा है, ठीक है। अब ये बताओ क्या लिखा है हमने? हाँ, ज्ञातीय, जो भी है ठीक है, जातीय फातीय ठीक है। अब ये तीनों जो वर्ड है नंबर सिस्टम में जानना बहुत जरूरी है। ये पहले वाला इकाई है, उसके बाद स्थानीय है, उसके बाद ज्ञातीय है। अब इस तीनों वर्ड का महत्व क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है? अब देख लो। इकाई का मतलब होता है अगर कोई नंबर बोलो 1 2 3 4 5 10 20, कोई कुछ भी नंबर मान के चलो। हमने लिखा है 2 3 4, 2 3 4 5, है ना? इसमें 4 डिजिट है, इसमें 4 अंक है, मतलब डिजिट है। अब संख्या एक है, एक संख्या है, लेकिन इसमें 4 डिजिट है कि नहीं? এটা একটা সংখ্যা কিন্তু 4টে অঙ্ক আছে। অঙ্কর নাম হচ্ছে 2 3 4 5। সংখ্যাটা হচ্ছে 2345। ठीक है, पहला बात है। अब ये लास्ट वाला डिजिट, ये लास्ट वाला अंक, ये लास्ट वाला अंक को कहते हैं इकाई या अंतिम संख्या या अंतिम अंक, है ना? अंतिम अंक या इकाई, है कि नहीं? तब आप समझ में आ गया। अब दूसरा वाला क्या है? स्थानीय। स्थान का मतलब क्या होता है? स्थान का मतलब क्या होता है তোদেরকে ছোট্ট একটা গল্প দিই। ধর 3খানা রুম আছে, 1 নম্বর রুম, 2 নম্বর রুম, 3 নম্বর রুম। এবার 3খানা রুমে আলুর বস্তা আছে। প্রত্যেকটা রুমের আলাদা আলাদা সিস্টেম আছে যে এই রুমের আলুর বস্তা এই রুমে থাকলে 100 পিস করে থাকতে হবে আলু। বোঝা গেল? পরের রুমে থাকলে 200 পিস থাকতে হবে। 3 নম্বর রুমে থাকলে 300 পিস, 1 নম্বরে থাকলে 100 পিস, 2 নম্বরে থাকলে 200 পিস, 3 নম্বরে থাকলে, আমি তোকে বললাম 3 নম্বরে 3 বস্তা, 3 নম্বরের 3 বস্তা, তাহলে কটি আলু হবে? যদি বলি 3 নম্বরের 1
হ্যাঁ, 3 নম্বরের 3 বস্তায় 900টি আলু, ঠিক বলেছো। যদি আমি বলি 1 নম্বরের 3 বস্তা 300টি আলু, রাইট। তাহলে কি করে বুঝলি? স্থান পরিবর্তন হলেই মান পরিবর্তন, স্থান পরিবর্তন হলেই মান পরিবর্তন। নাও লুক এট দিস, নাও দিস নাম্বার ইজ 5। এখানে লাস্ট ডিজিট 5 है, इसका मतलब এই সব নাম জানিস নিশ্চয়ই, একক, দশক, শতক, হাজার, রাইট। এর মানে হচ্ছে এটা আলুর ঘর, এটা হচ্ছে এই ঘরে আলু রাখলে 1000টা থাকবে, তাই না? তো কটা বস্তা আছে? তাহলে এর মান হচ্ছে 2000, তাই না? সমাজ মায় কেনা এই ঘরে মান থাকলে কটা? 100টা। শতকের ঘর কটা বস্তা আছে? 3টে, 300টা। এই ঘরে মান থাকলে 10টা করে আলু, কটা আলু আছে? 40টা। এই ঘরে একটা আলু আছে, একটা বস্তায় একটা আলু, 5টা বস্তায় 5টা आलू। তাহলে এটা হলো, ठीक है। तो ये गा स्थानीय मान। अब मान के चलो तीनों वर्ड लिखे हमने, ऐसे करके कुछ ऐसा लिखे तो 2 3 5, इसमें 5 का इकाई मान कितना है बताओ? 5, वेरी गुड। अब इसमें इसमें बताओ 5 का इकाई मान कितना है? स्थानीय मान, स्थानीय मान 5 का, इसमें स्थानीय मान कौन सा है? 5। इसमें कितना है? हाँ 50 है ना। अब ये देख दशकेर घरे आछे, ताई तो भालो करे बुझ, 5टा कौन घरे आछे? दशकेर घरे आछे। इसका मतलब ये 5 का जो स्थानीय मान होगा ये कितना होगा? 50 ना होगा। अब देखो हमने इसमें ऐसा डाल दिया, ठीक है ना। अब बताओ 5 का स्थानीय मान कितना होगा? 100। हाँ 500 हो गया, क्योंकि 5টা হচ্ছে বস্তা, কিন্তু ওই রুমে প্রত্যেকটা বস্তা 100 টাকা আলাদা, মোট কত? 500। এই ऐसा। अब आ गया, अब ये ज्ञातीय मान क्या है या জাতীয় মান কি? আমাদের তো অত আমরা হিন্দি পড়বো না, বোঝা গেলে মিটে গেল, রাইট। তো জাতীয় মান কি বা জ্ঞাতীয় মান কি? জ্ঞাতীয় মান যেটা সরাসরি দেখা যায়। ধর একটা ছেলেকে আমি দেখলাম, ভালো মন্দ আমি কি করে বুঝবো? ও তো বদমাইশ, আমি কি থোড়ি বুঝতে পারবো? হয়তো একাড্ডু বুঝতে পারবো যে মনে হচ্ছে, ডাউট হচ্ছে ছেলেটা খারাপ, তাই না? তো সরাসরি এখানে 5কে দেখে তো 5ই বোঝাচ্ছে নাকি রে? এখানে 5কে আলাদা বোঝাচ্ছে নাকি? এখানে কি আলাদা হচ্ছে? তো 5 যেখানেই বসুক সবসময় জ্ঞাতীয় মান বা আসল মান বা ফেস ভ্যালু, কি ভ্যালু? মুখ্য ভ্যালু। কি ভ্যালু? মুখ্য মান। এটাকে বলা হয় ফেস ভ্যালু, যা দেখা যায় তাই। 5 5ই। তাহলে সব সময় জ্ঞাতীয় মান 5-এর 5, 2-এর 2, 3-এর 3। अब समझ में आया? इसका मतलब हमने बताया इकाई क्या है, स्थानीय क्या है, अब ज्ञातीय क्या है। अब इसके इसके ऊपर हम लोग कुछ करेंगे, चलो देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तीनों वर्ड कौन सा वर्ड बताओ? हाँ अंतिम मतलब इकाई, और बताओ स्थानीय और जातीय या ज्ञातीय। अब ये तीनों में एकदम मान के चलो 100% कुछ ना कुछ आएगा, क्वेश्चन में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? मान के चलो हम लोग देखे हैं, बहुत सारे मैथ देखे हैं, देखो ऐसा कुछ मैथ देखे हैं जे मान के चलो अब बताओ इसका जो अंतिम डिजिट होगा, इसको जोड़ने में जो अंतिम डिजिट होगा क्या होगा? हमने देखे हैं, ऐसा कुछ मैथ देखे, याद करो। अब मान के चलो ऐसा कुछ मैथ, अब हम इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा? मतलब ये जो लास्ट में जो आएगा, लास्ट में कौन सा डिजिट? लास्ट या इकाई डिजिट, इसमें जो इकाई डिजिट आएगा क्या आएगा, है ना। ऐसा कुछ मैथ देखे है, तो ये जो मैथ होगा हम सॉल्व करेंगे ऐसा टाइप का। चलो पहला हम लोग का जो बुक है ना, इसमें एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमने लिख के दे रहा है। তোরা খুব ভালো করে ধীরে ধীরে বোঝার চেষ্টা কর। আমি যে অঙ্কগুলো করব সেই অঙ্কগুলো আমি বারবার রিপিট করব। রিপিট করলে কি হবে, প্রথমে হয়তো বুঝতে কষ্ট হবে, তারপরে আস্তে আস্তে কিন্তু বোঝা হয়ে যাবে। প্রথমেই প্র্যাকটিস করে না, সরাসরি প্র্যাকটিস করলে কি হবে, বারবার করতে করতে তোদেরও অভ্যাস হয়ে যাবে, ঠিক আছে। ঘাবড়ানোর কিছু নেই। তোমরা যারা জানো না ভাবছো, তো তাড়াতাড়ি চলে এসো। চলো আমি ফার্স্ট ম্যাথ একটা দেখে নেব। আমাদের এই বইয়ের যে প্রথম ম্যাথটা লেখা আছে, আমি লেখার চেষ্টা করি, আমি অঙ্ক লিখবো তারপরে করব, কারণ যেহেতু সবার কাছে বই নেই এখনো। अब देखो
हमने शॉर्टकट लिखा है। पहले क्या लिखा है, 4 7 5 2 4 5 में 5 का, किसका, 5 का स्थानीय मान, कौन सी मान, स्थानीय मान, और ज्ञातीय मान में क्या अंतर है, मतलब डिफरेंस क्या है ना। তাহলে এই সংখ্যাটা তোমার সরি 4,75,242 যেখানে আছে, এই সংখ্যাটায় 5-এর স্থানীয় মান এবং 5-এর জ্ঞাতীয় মান অর্থাৎ फेस वैल्यू মধ্যে কি পার্থক্য বা डिफरेंस কত। बहुत आसान मैथ है। अब चलो इसे बताओ तो 5 का जो स्थानीय मान कितना होगा। अब ये वाला नंबर हमने लिख दिया, अब बताओ। हाँ ठीक है ना, कितना होगा, कैसे 5,000 होगा, सही बोले। अब देखो कैसे स्थानीय मान लिखते हैं, आप यहाँ पे 5 बैठा दो, ठीक है ना। उसके बाद दाएं तरफ देखो, इधर देखो, जितना भी संख्या रहेगा उतना जीरो बैठा दो, जितना भी डिजिट रहेगा उतना जीरो। कितना, 1 2 3, हम 3 जीरो बैठा दिया, हो गया। बहुत आसान है ना। अब 3 जीरो बैठा दिया, ये गया स्थानीय मान। कौन सा गया, स्थानीय मान। अब इसमें से ज्ञातीय मान कौन सा है, ज्ञातीय मान ऑब्वियसली 5 ही है। 5 तो 5 दिखने में अब कितना आएगा बताओ, 4,995, 4,995, ठीक है ना। बहुत आसान है, ऐसा ही आएगा, ऐसा ही बहुत इजी वाला आसान वाला सवाल आएगा, लेकिन तुमको दिखाई नहीं देगा। पहले तो ये क्या है सर, ये कौन सा मान है, कैसा है, इसलिए हिंदी में प्रैक्टिस करो, है ना। बांग्ला में प्रैक्टिस करके क्या होगा, हिंदी में समझ में दिक्कत होगा, टाइम पास टाइम आ जाएगा। वी हैव नो टाइम, हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम की कमी है। इसलिए एकदम सीधा उतर जाओ फील्ड में खेलने के लिए, सीधा कुछ बुक लो, एक हिंदी वाला बुक लो और प्रैक्टिस करो। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कौन सा वर्ड क्या है, हमको पता है। ये इसको এটাকে আমি বলছি, একবার দেখলে মনে পড়বে। এটাকে আমি বলছি, তোর একবার দেখলে মনে পড়বে। আলাদা করে শেখার টাइम नहीं, অত শিখতে গেলে হবে না, हाँ একটু হলেই হবে, ठीक है ना। अब चलो दूसरा वाला मैथ हम करेंगे आज लाइव क्लास में। चलो अब दूसरा वाला मैथ क्या है देखेंगे। बहुत आसान मैथ है दूसरा वाला, तो लिख के दे रहा है, देखो। इसमें अब हमारा कुछ नहीं लिख रहा है। इसमें जो ए वाला जो नंबर है, इसको गुणा करने के बाद এই নম্বরটা গুণ করার পর इकाई अंक অর্থাৎ এককের সংখ্যা কি হবে, आसान शब्द में बोले, इसको गुणा करने के बाद শেষ সংখ্যা কি হবে গুণ করার পর। अब তুই বলবি যে স্যার আমি তাহলে এতগুলো গুণ করতে টাइम चले जाবে, है ना। नहीं करना है, ऐसा गुण तुमको नहीं करना है। तुमको गुण कैसे करना है इन्होंने बताया, इन्होंने बोला सिर्फ और सिर्फ अंतिम संख्या। कौन सी संख्या, अंतिम का मतलब क्या है, इकाई। हाँ वेरी गुड, इकाई। अब इकाई कौन सी है, इसमें इकाई ए चूज कर लो। अब इसमें से हम 5 ले लिया, इसके बाद ये 2 ले लिया, इसके बाद इसको 1 ले लिया। अब बताओ सही है कि नहीं, है ना। बहुत आसान है, हमने जो बोला वही किया ना। वो बोले इकाई अंक क्या होगा, हम जो इकाई वाला अंक है उसको ले लिया। आप इसमें देखो, इसमें से जो लास्ट डिजिट इसका है कौन सा है, 5 है, तब 5 ले लिया। अब इसमें से 2 ले लिया, अब इसमें से 1 ले लिया, ठीक है ना। अब देखो, अब करो 5 और 2 गुण मल्टी से क्या कितना होता है, 10 होता है। लेकिन हमको 10 से मतलब नहीं है, हमका मतलब ये है हाँ अंतिम संख्या में। कौन सी में, अब 10 लिखो, अब 10 लिखो, 10 के लास्ट वाला डिजिट कौन सा है, शून्य। अब शून्य आ गया, अब शून्य से किसी को भी मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, है ना, ये 0। अब शून्य, तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो नंबर है अब इसको आप गुणा करोगे तो इकाई जो डिजिट होगा वो कितना होगा, 0 হবে। তুই বল কি সোজা কিনা, কি রে তাহলে সোজা বলে হিন্দি পারা যাবে না, ওই দূর থেকে দেখলে ভয় লাগে, নেমে পড়লে কোনো ব্যাপার না, ঠিক আছে। হ্যাঁ ठीक है। अब चलो, अब दूसरे में तीसरा वाले मैथ में जाते हैं। हम लोग तुमको होमवर्क देंगे, अभी क्लास वर्क देंगे, ठीक है। चलो तीसरा वाला मैथ तो और भी आसान है, इतना आसान। अब देखो 745 में जो क्या होगा, इकाई मतलब ये जो नंबर है 745,
अब पहले ये समझना है 745 का मतलब क्या होता है। अब 7 टू द पावर 45, राइट, हमने लिखा है 2 पावर 3 या 2 टू द पावर 3, तो ये जो घात होता है 2 এর মাথায় 3, इसका मतलब क्या है पहले ही बताओ। वेरी गुड, 2 को 3 बार 3 टाइम्स गुणा करना है कि नहीं, तब इसका मतलब होता है ऐसा, है कि नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसका मतलब होता है 7 को 45 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद जो वाला इतना बड़ा डिजिट आएगा उसमें जो अंतिम अंक होगा उससे हम मतलब है। अब ऐसा थोड़ी करेंगे, हम दूसरा ट्रिक लगाएंगे। कौन सा ट्रिक? बहुत आसान सा ट्रिक, ए वाला समझना बहुत बहुत जरूरी है तुम लोग के लिए। तुमको ए ऐसा कुछ रहेगा तो ऐसा डिजिट रहेगा, मतलब घात रहेगा, पावर रहेगा, तो क्या होगा? अगर पावर रहेगा तो ये इसका ऊपर जो घात है, इसमें घात कौन सी है हमारा? 45। जो घात है उसका 2 डिजिट ही लेना है। कितना डिजिट? अब मान के चलो ऐसा भी हो सकता है, मान के चलो हमने ऐसा कुछ लिखा 7 के मतलब 3 4 3 लिख सकते हैं, है क्या नहीं, है ना। अब इसके बाद हम ए भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दे, है कि नहीं। अब ऐसा भी कर सकते हैं। দেখো আমার কথা হলো তোরা এমন ভাবে শিখ যেন এক অঙ্ক 5 বার শিখতে না হয়, দেখলে মনে পড়ে, ঠিক আছে না। তাহলে কি হতে হবে, ছাত্রের মাথায় এটাও থাকতে পারে, এটাও থাকতে পারে, এটাও থাকতে পারে। তাহলে আমি কি করে করবো সেই ট্রিকটা তোকে শেখাচ্ছি। बहुत 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 आसान है। क्या मैंने बताया? क्या जो पावर रहेगा, जो ऊपर में रहेगा, जो टोपी रहेगा, उसमें से 2 डिजिट लेना है। कौन सा डिजिट? 2 अंक लेना है, मतलब 2 अंक लेना है। দুটো সংখ্যা, शेष দুটো সংখ্যা, कौन सा वाला? इसका मतलब अंतिम वाला, अंतिम 2 संख्या को लेना है। अब इसमें देखो, इसमें हम 26 लेंगे, इसमें हम 43 लेंगे, और इसमें तो 2 है तो 2 ही लेंगे, है कि नहीं। ठीक है, आप 2 को जो संख्या हमने चुने हैं, माने हमने जो संख्या पसंद किए हैं, हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे। कौन से डिवाइड करेंगे? अब 4 से डिवाइड कर दो, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब 4 से डिवाइड कर दो। अब डिवाइड से मतलब नहीं, हमको रिमाइंडर से मतलब है, मतलब भाग शेष है हमारे पसंद हो। तो अब 4 से डिवाइड कर दो, 4 4 1 के 4 5, 4 1 के 4। अब कितना रह गया? हम इसमें इंटरेस्ट है, আমার ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে রিমাইন্ডার। রিমাইন্ডার मतलब भागशेष। रिमाइंडर मतलब क्या है? भागशेष। भागशेष कत? इसमें हम इंटरेस्ट और किसी में नहीं है। अब बताओ, अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर रहेंगे? 3 रहेंगे ना। अब बताओ, বল, আমি যদি এটাকে 4 দিয়ে ভাগ করি কত ভাগশেষ থাকবে? এটাকে কত ভাগশেষ ছিল? 1। এটা কত ভাগশেষ থাকবে? 2। ঠিক আছে না। हाँ, अब दूसरा वाला स्टेप देख लो। पहले पहला वाला स्टेप क्या हुआ? मैंने 2 संख्या को चूज किया। कौन सा वाला? कौन सा वाला? लास्ट 2 वाला। उसके बाद क्या किया? 4 से डिवाइडेड किया। उसके बाद क्या किया? नहीं, डिवाइड तो किए, डिवाइड के बाद क्या किया? जो रिमाइंडर जो है उसमें ध्यान दिया, है कि नहीं। अब इसमें देखो, अब एक रिमाइंडर रहेंगे तो हमको करना क्या है? बहुत आसान है। अब एक का मतलब ये होता है जो नीचे वाला शब्द रहेगा उसको एक बार मल्टीप्लाई करना है। कितना बार? अब 7 को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही ना होगा, है क्या नहीं। तो इसका मतलब होता है इसका लास्ट डिजिट 7 होगा। अब इसमें कितना रह गया? 3 टाइम। अब ये इस ए वाला लास्ट 7 के ऊपर है, हम 7 को नहीं 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 ऐसा थोड़ी होता है। अब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 7 2 रह गया तो इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। आया समझ में? रुक जाओ, हाँ 2 नहीं होगा, ठीक है। अब समझ में आया? अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब बहुत आसान है, इसको सॉल्व करो बेटा। अब 7 7 से गुना करो, कितना होता है? 49। इसका मतलब होता है 9, क्योंकि हमको लास्ट ही लेना है। हमको कौन सा डिजिट लेना है? अंतिम संख्या लेना है। अब इसमें बताओ कितना होगा? 3 होगा, है कि नहीं। अब 7 7 49 मतलब 9 हो गया। अब 7 9 कितना होता है? 63 होता है, मतलब 3 होता है, ठीक है। 7 7 49, 49 9 আর হাতে থাকবে না, 9 7 নাম 63, 63 3, তাহলে कितना हो गया? 3। अब ऐसा रहेंगे तो 3 होगा, ऐसा रहेगा तो 9 होगा, अब ऐसा रहेगा तो 7 होगा। अब बताओ কি কঠিন লাগছে? কি রে, পারবি না সোজা? পারবি কিনা? মনে হতে হচ্ছে পারবি না, পারবি?
हाँ चलो देखते कैसा। हम लिखने से पहले तुमको बोलना है, ठीक है ना। हम ऐसा ही देंगे, कोई आशा हार्ड नहीं देंगे, ठीक है। अब चलो दिमाग लगाना, सही से दिमाग लगाना, ठीक है। बहुत आसान देंगे। अब हम पहले आसान ही देते हैं। बताओ लास्ट वाला डिजिट क्या होगा, ठीक है। बताओ, ये दोनों बताओ, सबको बताना चाहिए। ओके, पहले बताओ, और बताओ, और लोग बताओ। अब बताओ रानी, बताओ ये डिजिट कैसे कितना होगा। उन्होंने बताया 3 हो गया और बताया 7 हुआ। अब तुम लोग बताइए सही है गलत है। ठीक से देखो, ध्यान से देखो कैसे बना सकते हैं। सर वो फर्स्ट का जो है वो 3 होगा। हाँ, और फर्स्ट जो है वो 3 होगा। हाँ, और उसके बाद 5 3 है 3 आप देखो, ध्यान से देखो, बहुत बहुत आसान है, पहले समझना है। अब क्या पता, मैंने बोला इसको 4 से डिवाइड करो। कौन किसे डिवाइड करना है? 4 से। अब 4 से डिवाइड करने से क्या होता है बेटा? 4 से डिवाइडेड करने से आप देखो कितना रहता है, एक रहता है। इसका मतलब जो लास्ट वाला डिजिट हो एक बार गुणा करना है, एक बार गुण करते হবে। अब लास्ट में क्या है? 3 है, तो 3 के जरिए हम एक बार गुण करी तो 3 ही হবে। तो इसका मतलब ये होता है लास्ट वाला डिजिट 3 ही होगा। आया समझ में? आप ये देखो, এখানে দেখ তোরা 23 আছে, কত আছে? 23 আছে। তো 23 কে 4 দিয়ে ভাগ কর। কয় দিয়ে ভাগ করব? 4 দিয়ে ভাগ কর। 23 কে 4 দিয়ে ভাগ করলে কত হবে? 4 5 20, তাই না? 3 ভাগশেষ থাকবে। তো 3 ভাগশেষ থাকা মানে কি এইখানে যে সংখ্যাটা আছে কোনটা? 3 আছে। হ্যাঁ 3, ঠিক বলেছো। তাহলে 3 3 का 9, 3 9 27। अब कितना हो गया बता? आया समझ में? और दे, और देवो। चल देखते हैं, दिमाग लगा, और जोर से दिमाग लगा, ठीक है। बाद में टोक लेना। चलो आप सही से दिमाग लगाना। हम 5 मैथ देंगे, 5 टाइप का, ठीक है। थोड़ा सा हल्का देंगे, उसके बाद हार्ड देंगे, ठीक है। चलो करना है, तुमको सीखना है, जल्दी से करो। अब बहुत आसान है, एक नंबर समाधान करना तुम लोग। तुम भी जो लोग देख रहे हो मेरा, हाँ ऑनलाइन में, तुम भी समाधान करना, है ना। अब थोड़ा सा हटके देते हैं। अब चलो करके दिखाओ। सबका अंतिम संख्या निकालना है, ठीक है। अब तीनों से तीनों का नाम सबको देखेंगे। আর তোমরা যারা ভাবছো এখন আইকে স্টাডি ফোর্স একাডেমিতে আসবে তারা অবশ্যই চলে এসো। ओके 6 2 3। अच्छा देखते हैं, उसके बाद देखो তোমরা যারা ভাবছো যে আইকে স্টাডি ফোর্স একাডেমিতে আসবে খুব তাড়াতাড়ি চলে এসো, কারণ আমাদের 20 তারিখের মধ্যে যারা আসবে তাদেরকে আমরা কিন্তু 50% ডিসকাউন্ট দিয়ে চলেছি অনলাইনে, ঠিক আছে। তো আমাদের যেহেতু হিন্দি ক্লাস শুরু হয়ে গেছে, তোমরা কিন্তু এখনই চলে আসতে পারো এসএসসিজিডি স্পেশাল ব্যাচ। এজন্য এই নম্বরে ফোন করো, সমস্ত কিছু ডিটেলস কিন্তু তুমি এখান থেকে পেয়ে যাবে। আর তাড়াতাড়ি কমেন্ট করো। বল ভালো করে দেখ, বল হচ্ছে কিনা। তুই কর, हम करें। चलो 2 मिनट टाइम है। अच्छा इसको देखो। अब ये तो এখানে 42 কে যদি 42 কে 4 দিয়ে ভাগ করা যায় কয় ভাগ শেষ থাকে রে? তাহলে এখানে 4 কে কবার গুণ করতে হবে? তাহলে 4 ছাড়া কত? তাহলে 16 কত হবে? 6। তাহলে वेरी गुड, हो गया ना। अब इसको देखो, अब ए वाला देखो। अब 21 के 4 দিয়ে ভাগ করলে কত ভাগ শেষ থাকবে? 1।
তাহলে 6 কে একবার গুণ করলে 6, রাইট। 22 কে 4 দিয়ে ভাগ করলে কত ভাগশেষ থাকবে? 2। তাহলে 6 কে দুবার গুণ করলে কত হয়? 6 হয়। তাহলে এটাও 6, এটাও 6, 6 আর 6 যোগ করলে কত হয় বাবু? 12 কত? তাহলে এটাও ঠিক। বুদ্ধি লাগা, একটু বুদ্ধি লাগা, ঠিক আছে? যেমন যেমন থাকবে তেমন তেমন করতে হবে। আমি করলাম, এখানে একবার থাকলো তাই 6 গুণ করলাম 6, রাইট। আচ্ছা এখানে দুবার থাকলো 6 যা 36, 6, এই 6 আর এই 6 যোগ করলাম, তাহলে কত হলো? 12, 12 2। আচ্ছা এটা দেখ, এটা আরো সোজা, কবার থাকবে এটা? 3 বার। তা 7 কে 3 বার গুণ কর, কত হয়? 7 7 9, 7 নাম 3। কেন? 7 36, হ্যাঁ দুবার গুণ হবে, তা 6 6 36, হ্যাঁ। আর এই 6 আর এই 6 যোগ করলে কত হবে? না তাও তাই হলো 42, তো 42 এর 2, ব্যাপারটা একই, তাই না? বোঝা गल? चलो आगे बढ़े, थोड़ा इसमें ध्यान दे। हम लोग का जो बुक है वो वाला बुक में ध्यान दे, बहुत आसान है। अब चलो देखते हैं। कार मोबाइल केटे दे। ये वाला देखो, बहुत, ये वाला जो मैथ है एसएससी में आया है, ठीक है ना? देखो कौन सा आसान है, बहुत सा आसान है हम लिख में। अब इसमें भी इकाई वाला नंबर पूछा है। अब देखो ध्यान से देखना, बहुत बहुत বলা হয়েছে এই শেষ সংখ্যা কি डब्ल्यूबी तो এসেছিল এরকম সংখ্যা, ঠিক আছে না? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज, थोड़ा आज इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ना? देखो तुम लोग हर दिन 2 क्लास अटेंड करो ठीक से, और 1 महीने के बाद सुपर डुपर हो जाओगे। लेकिन हर दिन क्लास अटेंड करना है, जो भी हम लोग वर्क देंगे, होमवर्क देंगे वो करना है एवं सही ढंग से करना है, ठीक है? अब इसमें से लिखा है इकाई वाला नंबर क्या होगा, ठीक है? इकाई वाला नंबर क्या होगा? अब ध्यान से देखो, अगर सेम रूल से, कोई अलग अलग रूल्स नहीं है, ठीक है? अब इसमें कितना आया? 24। अब 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना रहेगा? 0। अब 0 रहेगा तो 0 रहेगा, इसका मतलब होता है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब अगर 0 रहेगा, যদি কোনো শূন্য থাকে তাহলে 4 বার গুণ করব। কতবার গুণ করব? হ্যাঁ, শূন্য মানেই 4, তো শূন্যকে কবার গুণ করব? 4 বার। তাহলে এইটার জন্য আমি মনে মনে 2 কে 4 বার গুণ করব। বলো তো তোরা বুঝলি কিনা বল, ঠিক আছে না? আমি এটা রেখে দিলাম, এবার তোকে কারণ আর একটু হালকা স্টেপে করাই এবার। अच्छा इसमें 15 आया है, कितना रहेगा 4 से डिवाइड करने से? 3 ना रहेगा। अब 3 को 3 टाइम्स गुणा करना है, ठीक है ना? अब आ रहा है समझ में, क्लीन हो रहा है? अच्छा वेरी गुड। अब 11 को डिवाइड करने में कितना आएगा? 11 को যদি 4 দিয়ে ভাগ করি তাহলে বলতো কত ভাগ শেষ থাকবে রে? 3। তুই এমন কোশ্চেনে বুঝতে পারছিস না, তাহলে এবার বল বুঝতে পেরেছিস? ঠিক আছে, এবার অল্প অল্পকে সমাধান করব, ধীরে ধীরে ধীরে, বহুত ধীরে। কচ্ছপ আর খরগোশ কচ্ছপই দিয়েছিল। যারা তাড়াহুড়ো করে পড়াশোনা করে, শর্টকাটে চেষ্টা করে ম্যাথ করার, তারা কিন্তু জিততে পারবে না, আলটিমেটলি ফেলিওর হবে। যে ধীরে ধীরে স্টেপ বাই স্টেপ শিখে শিখে অনেক কিছু শিখবে, সে কিন্তু পাস করবে। তো নাও দিস ওয়ান, अब इसमें से 2 2 4, 2 দুগুণে 4 আর এ 4, বাংলা না বলে মজা है रे। 4 4 16 है ना? তাহলে 16 कितना होगा? इसी को ध्यान रखना है। अब देखो हमने क्या बताया, हमने 2 2 4 2 2 4 4 4 6 बोलेंगे, 16 नहीं बोलेंगे। हमें 4 4 এখন 6 বলবো, কারণ কি আমার তো এখন 6 দরকার, 16 দরকার নাই। आया समझ में? आया। अब इसमें देखो, अब 3 3 जार 9, अब 9 3 जार 7, है ना? ऐसा सीखना है कि नहीं? अब इसमें देखो 4 4 जार 6, 4 6 4, 4 4 16, 16 6, 4 6 24, 24 4। अब तुमको ऐसा बोलना है ना? बोलते হবে কম এবং বুঝতে হবে বেশি, ঠিক আছে? তাহলে हो गया। अब इसमें भी गुणा करेंगे। अब क्या हो गया, मेरा 6 आ गया, यहाँ से 7 आ गया, यहाँ से 4 आ गया, है ना? हमने क्लीन करके लिखा। आप देखो 6 से और 7 को मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया?
दो हो गया। अब 4 लगा दो, 4 लगा दे के मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 8 हो गया। अब यही वाला मैथ आया थे, अब ऐसा ही आएगा, ऐसा ही आएगा, हर बार आता है। ठीक है ना? বল কে বুঝতে পারিস নি বল অঙ্কটা? সবাই বুঝতে পেরেছিস? আর একবার বলবো? ওকে, वेरी गुड। কোথা থেকে বলবো বাবু বল? प्रथम থেকে। अब देखो ये हमारा रूल्स क्या है? हमारा रूल्स है जो घात में रहेगा, इसमें 24 है, इसको 4 से डिवाइडेड करना, ये पहला रूल्स है। প্রথম নিয়ম হচ্ছে কি, মাথার উপরে যেটা থাকবে সেটাকে 4 দিয়ে ভাগ করা। ঠিক আছে? আছে? তাহলে আমার মাথার উপরে এইখানে একটু আমি রাফে করব, যারা এখনো বুঝতে পারছো না তাদেরকে একটা বলি। দেখো মাথার উপরে আমার ধরো এখানে 3-এর মাথায় 3, 4, 1 আছে, হয়েছে না? আচ্ছা আমি এটা 3-এর মাথায় নেব না, এটা আমি ধরো 5 আর 6-এর মাথায় নিলাম। এমন একটা সংখ্যা আমি আলাদা সংখ্যা হয়েছে না নিলাম। বলবো যে এই সংখ্যা সেই ডিজিট কি, নিয়ম কি, যে সেই যেটা সংখ্যা সেই দুটো সংখ্যা কোনটা? 41। 41কে 4 দিয়ে ভাগ করবো। কয় দিয়ে ভাগ করবো? 4 দিয়ে ভাগ করলাম। আচ্ছা মনে মনে যদি 41কে 4 দিয়ে ভাগ করি, ভাগশেষ থাকবে কত? ইয়েস, ভাগশেষ থাকবে 1। এইটা মানে হচ্ছে যে এই একটা মানে হচ্ছে যে এই শেষ সংখ্যাটাকে একবার গুণ করতে হবে। কতবার গুণ করতে হবে? একবার। তাই 7 একে তাই এখানে 7ই হবে। যদি কোনো কারণে এখানে 41-এর বদলে আমি যদি এখানে 42 দিতাম, কত দিতাম? 42 দিতাম, তাহলে ভাগশেষ কত থাকতো? 2। তাহলে এই 7কে আমি কবার গুণ করতাম? 2বার। 7 7 49, 49-এর কত নিতাম? 9। তাহলে আনসার হতো 9। যদি কোনো কারণে এখানে 343 থাকতো তাহলে আমি এখানে 3 বার নিতাম, ভাগশেষ থাকতো 3, আমি এখানে 3 বার নিতাম। কতবার নিতাম? 3 বার। তাহলে 7 7 49, 49-এর 9, 7 নাম 63, 7 নাম কত? 63, 63-এর কত? 3, তাহলে আমি এখানে 3 নিতাম। বোঝা গেল? ক্লিয়ার? এবার 4 থাকলে 4 বার গুণ করবো, 4 থাকলে 4 বার গুণ করবো, আর বাড়বে না। হয় 1 বার গুণ, নেই 2 বার গুণ, নাই 3 বার গুণ, আর না হলে এটাই ম্যাক্সিমাম। এই ক্ষেত্রে 24-এর ক্ষেত্রে 0 ভাগশেষ, তাহলে 4 বার গুণ করতে হবে। কতবার গুণ করতে হবে? 4 বার গুণ করাও যা, 24 বার গুণ করাও তাই। আমার ক্ষেত্রে কি বললাম? তাহলে আমি 2-কে 4 বার গুণ করে লিখে নিলাম সুন্দর করে বোঝার জন্য। হয়েছে? এখানে 15-কে 4 দিয়ে ভাগ করলাম, কত ভাগশেষ থাকবে? 3। তাহলে 3 বার গুণ করলাম 3-কে। ক্লিয়ার? এখানে 4 আছে, 11 আছে, কত ভাগশেষ? 3। 4-কে 3 বার গুণ করলাম। ক্লিয়ার? এবার আমি গুণ করছি, 2 দুগুণে 4, 4 দুগুণে 8, 8 দুগুণে 16, 16 शेष संख्या कत? 6। हमने लिए ना 6, है कि नहीं? ठीक है ना? अब 6 ले लिया। अब उसके बाद देखो 3 और 3 गुण कर ले 9, 3 9 27, 27-এর 7, তাহলে हमने 7 भी ले लिया, 6 भी ले लिया, राइट? अब इसमें देखो 4 4 16, 16-এর 6, আবার 4 6 24, 24-এর 4, 4 নিয়েছি, বল সোজা না? তাহলে 6 7 42, 42-এর 2, हमको 42 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमको गुणा नहीं करना, हमको गुण করতে হবে না, আমার শুধু শেষ সংখ্যাটা বেরোলেই হবে নাকি রে? কি রে, हमने তোকে बताया, मान के चल একই গ্লাসে আমি বিভিন্ন রকম শরবত রেখেছি, সেই শরবতে ফ্লেভার দেওয়া আছে, মিষ্টি, টক, তেতো সবকিছু দেওয়া আছে। আমি বললাম দেখ তো কোন শরবতে কি আছে, তুই কি শরবতটা গোটা খেয়ে নিবি নাকি? শুধু জিভেটাকে টেস্ট করে দেখবি যে কোনটা মিষ্টি। বোঝা গেল? আয় সমাজ মে? হ্যাঁ, একটা গ্লাসে বললাম না শরবতটা মিষ্টি আছে তো বলতো, তুই এটা আঙুলটা ঠেকে টেস্ট করবি যে ঠিক আছে মিষ্টি আছে স্যার, এগুলো সব। বোঝা গেল? তোকে আমি ওইটুক বলেছি, আমি কিন্তু গুণ করতে বলিনি, আমি শুধু আঙুল ঠেকাতে বলেছি। মানে কি, শুধু শেষ সংখ্যাটা জানতে হবে, কোনো রকমের শেষ সংখ্যা বাড়ালে ছেড়ে দিতে হবে। তাহলে এখানে 6 7 42, তুই 42 আর 4 গুণ করলে হবে না, শুধু 42-এর 2 নিতে হবে, হ্যাঁ ওইটাকে বুঝতে হবে। হ্যালো? তবে কথা হলো 7 দোকানে 8, শেষ সময় কত? 8। পানি লেখা তো তাহলে বল, বুঝতে পেরেছিস? क्लियर হয়েছে? আবার आप देखते हैं, है ना? अब इसके बाद तुम लोगों का बारी है, चलो करके दिखाओ। बहुत आसान सा मैथ देंगे, बहुत आसान सा। अब बताना है सबको, लिखने से पहले बताना है, दिमाग लगाना है, ठीक है? चलो 1 नंबर 7 8 2 3 4 6 4 3 2, नहीं 5 नहीं देना है,
हाँ, अब करके दिखाओ। देखते हैं तुम लोग का दिमाग कितना चलता है। अब बताओ कितना होगा। हाँ, अब इसमें से क्या फर्क है, करके दिखाओ चलो। अब जो भी है ऐसा ही है। हाँ, एक टाइप। अब दिमाग लगाना, धीरे से लगाना, गलत नहीं करना है। टाइम लगने दो, तुम्हारा टाइम लगने दो, लेकिन सही बोलना है। दुई, ओके चलो, एक ने बोला दुई, दूसरा वाला देखो। हाँ, आपने ध्यान से बोलना है, तो के नीचे करे बोलते হবে। चलो, छय, वेरी गुड। अपना अपना बोलना, अपना अपना बोलना। कौन क्या बोल रहे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, खुद को जीतना है। छय, ओके चलो, छह भी आ गया, दो भी आ गया, छय। इसका मतलब 6 ही होना चाहिए। आ गया ना। आप देखो, একটা কথা বল, যখন প্রথমে শুরু করেছিলাম তখন মনে হচ্ছিল না বিরাট কঠিন কিছু কথা স্যার, কি মনে হচ্ছিল না ইমানদারির সঙ্গে? কিন্তু এখন কি মনে হচ্ছে যে একেবারে সোজা, এত বড় ম্যাথ দিয়ে তাও তোরা কিন্তু করে ফেলেছিস। ঠিক আছে, সেই জন্য কোনো সমস্যা দূর থেকে দেখলে কঠিন, কি বললাম, কিন্তু সমস্যার মধ্যে ঢুকে গেলে কঠিন না। যে ঝামেলা করে তার কাছে কিন্তু ঝামেলা মনে হয় না। কার কাছে মনে হয়? যে ঝামেলা দেখে, তাই না? বলে বিরাট মারামারি করছে, কিন্তু যে মারামারি করছে সে কিন্তু বোঝে না যে বিরাট মারামারি করছে, কারণ ও তো বুঝতে পারছে না, কারণ ও তো করছে। তো তোরা তাই, তোরা ভাবে যে হিন্দি কঠিন স্যার, এত অঙ্ক কঠিন, তো করিস না তাই কঠিন। কি করিস না তাই কঠিন, বোঝা গেল? জ্যাক ক্যালিস একসময় বিশ্বের 1 নম্বর অলরাউন্ডার ছিল। তো তিনি একসময় রাগবি প্লেয়ার ছিল, ফুটবল, রাগবি, নিউজিল্যান্ডের রাগবি, ফুটবল, রাগবি প্লেয়ার, বিরাট রাগবি প্লেয়ার। তো সব প্লেয়ার সব কিছু টেস্ট খেলে, মানে শরীর ফিটনেস জন্য। তো একদিন জ্যাক ক্যালিস এরকম ব্যাট প্র্যাকটিস করছে, মানে নর্মালি। তখন ওর বাবা এসে বলছে যে বাবু তুই এই খেলা প্র্যাকটিস করিস না, এইটা সব থেকে ভদ্রলোকের খেলা এবং সব থেকে কঠিন খেলা এবং স্কিলের খেলা। ওর কথাটা কিন্তু বড় হিট লেগেছে, এইটাই সব থেকে কঠিন খেলা? বলছে হ্যাঁ, এটা বিরাট কঠিন খেলা। তো ওকে বলে, তা আমি এই খেলাটাই খেলবো, সেদিনকে প্রত্যেক আমি এই খেলাটাই খেলবো। তারপরে প্র্যাকটিস করতে করতে একদিন বিশ্বের 1 নম্বর অলরাউন্ডার হয়েছে, বোঝা গেল? সাউথ আফ্রিকার আপনার ক্যাপ্টেন গ্রেম স্মিথ, পুরাতন ক্যাপ্টেন, ছোটকালে গলিতে খেলতো। ও খুব ভালো বুদ্ধি ছিল, মানে ফিল্ডিং ছাড়াতে, মানে ম্যানেজমেন্ট, লিডার ক্ষমতা। তো ওর লোহার আলমারি ছিল, লোহার আলমারিতে লিখেছিল মানে আমি একদিন সাউথ আফ্রিকার ক্যাপ্টেন হব। লোহার আলমারিতে খোদাই করে, লোকে বলতো পাগল ছেলে, সারাদিন পড়ে থাকে খেলা। ঠিক আছে, ও কিন্তু সাউথ আফ্রিকার ক্যাপ্টেন বেনেছে, বুঝতে পারছি? তো এইরকম অনেক উদাহরণ আছে। সমস্যা অন্তর থেকে আনতে হবে, কি থেকে? ভালোবাসাটা অন্তর থেকে আনতে হবে, অঙ্কের প্রতি ভালোবাসা অন্তর থেকে আনো। অন্তর দিয়ে কোনো কাজ করলে, শাহরুখ খানের ডায়লগ ছিল না যে তুমি যদি চাও অন্তর থেকে, তো দুনিয়া কেন, সারা পৃথিবী তোমাকে দেওয়ার জন্য রেডি থাকবে। তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে ওই চাওয়া চাইলে হবে না, फालतू चावा चाहले হবে না, সঠিক চাওয়া যেতে হবে। ঠিক আছে, तो चलो हम देखेंगे, बाद में डायलॉग देंगे। अब इसमें देखो 2 और 6 कितना आता है? 2 आता है, वेरी गुड वेरी गुड, है क्या नहीं? 6 दे 6 दुकाने 2, है ना? 9 2 8, 9 दुकाने 8 এর মানে 8, আমার তো 9 2 8 হবে এখন নাকি? 9 दुकाने 8। अब आ गया, अब 8 2, हाँ दाड़ा, 8 2 6, है क्या नहीं? अब 6 8 8, अब 8 9 2, वेरी गुड, 2 8 6, हाँ 6, ठीक है। अब एक 6 रह गया, 6 6 6, अब 6 8 बोल 8, 8 दुगुने 6। अब आ गया, अब बता, आया समझ में? बहुत आसान है। বল কার কার হয়নি, হাত তুলতে দেখি। যাক, খুব ভালো লাগলো, সবাই পাচ্ছি, সেটাই বড় কথা। चलो अब देखते हैं दूसरा वाला मैथ, हम लोग का ये वाला मैथ क्या है। अब इसमें भी बहुत आसान मैथ है, इसको करना ही करना है, बहुत आसान है। अब तुमको एक ट्रिक बता देंगे हम, एक ट्रिक ऐसा बता देंगे सब लोग हंस पड़ोगे, ये सर इतना आसान है। इसमें से बोल रहा है इकाई का मतलब क्या है?
अब बता देते हैं। हाँ, अब देखो ये वाला मैथ कैसा है, एक ट्रिक बता देंगे तुमको इसके बाद। बहुत आसान है। अगर मान के चलो एक, कितना नंबर बताया, 1 5 6, कितना कितना नंबर बताया 1 5 और 6, याद रहेगा कितना बताया, हाँ 143 ना 156 नहीं गिरे, तो 156 1 5 6। अब ये ऐसा नंबर है তুই যতবার খুশি গুণ কর, যা ইচ্ছা কর, শেষ সংখ্যা ততই হবে। 1 কে যতবার খুশি গুণ কর, 5 কে যতবার খুশি গুণ কর, 6 কে যতবার খুশি গুণ কর, শেষ সংখ্যা তাই হবে। তাহলে আমার এই উপরে কেটে দেখার দরকার নাই, হিসাব করারই দরকার নাই, हिसाब करारी दरकार नहीं। अगर ऐसा रहेगा तो आसानी से बैठा देना। अब बता 6 5, अब कितना रहेगा, পৃথিবীর কে না পারবে বল। একটা যদি ক্লাস 1 এ বাচ্চা যে কথা বলতে পারে তাকে যদি বোঝাই, বাবু এটা 6 থেকে 6 লিখবি, এখানে 5 থেকে 5 লিখবি, 6 থেকে 6টা চকলেট থেকে 5টা চকলেট বাদ দিয়ে দিবি, একটা পড়ে থাকবে, বল পারবে না? কিন্তু তোরা পারবি না, কেন বলদিনি? কারণ 1 বছরের বাচ্চা শুধু পড়ার দিকে ভাবে, আর তোরা ক্লাসে বসে অন্য কিছু ভাবছিস। বোঝা গেল? তাহলে ইমান ঠিক রাখতে হবে, পড়তে গেলে পড়ায় রাখতে হবে, নাহলে হবে না। বুঝতে পারলি? ধপ দিয়ে বেশি দিন বাড়া যায় না, মনোযোগ एकदम फुल माइंडेड रखते हुए। ठीक है, चलो अब इसमें देखेंगे। अब दूसरा वाला मैथ, अगर मान के चलो हमने ऐसा कुछ दिया, मान के करके दिखाओ तो दिखाओ, चल बहुत जल्दी से करना है ना। हमको हमें से चुरा लो, अब कितना आ गया बता, 3 ना रहेगा, हाँ लास्ट डिजिट कितना आया, 3 आ गया। अब ये 6 का 6, 5 के 5, अब 2 ऐसा ही दे दिया भिल के दिखाने के लिए, अब कितना आएगा, ये 13, इसका मतलब हो गया 3 रह गया, है ना? ताले 3 হবে, है ना? বুঝতে পেরেছিস? বল কি সোজা না? अब चलो आगे बढ़े। अब ये वाला मैथ हम लोग के लिए 6, नंबर 6। अब इसमें से तुम लोग को करना है, हमने लिख देंगे, अब करो। बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है। इस गुणन में अंतिम संख्या क्या है, अब बता, सब लोग बता। वेरी गुड, देखते हैं आगे बढ़ के देखते हैं। अब ए जो मैथ लिख रहे हैं हम, ए वाला भी एसएससी में आया है, और डब्ल्यूबी प्रीलिम भी ऐसा कुछ आया था। अब देखो, चलो करो, थोड़ा टाइम लो। अच्छा, ऊपर वाला 7 हुआ है, दूसरा वाला 3 हो रहा है। चलो सब लोग करके दिखाओ, धीरे धीरे से करो। अब देखो तुम लोग को लिखना भी आएगा, जैसा हम लिख रहा है, जो जिसको नहीं आ रहा है उसको देख के करो, ऐसा करो, है ना? चलो आगे बढ़े। अब देखो इसमें से, अब ये तो पहला 45 है, अब 45 है 4 से डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर रहेगा, मतलब ये 1 टाइम होगा 7, राइट? अच्छा, अब इसमें देखो इकाई है, मतलब एक, প্রথমে এক আছে, এক কে থেকে 100 বার গুণ করে 1 কোটি বার একই तो হবে। अब आ गया 7 1 जार 7। अब बताओ कितना आसान मैथ है, लेकिन ऐसा ही आएगा, तुम लोग को नहीं होगा। এইরকম অঙ্ক আমি তোরা পারবি না, কারণ কি তোদের ধৈর্য থাকবে না, থড়বড়ে হয়ে যাবি, তাড়াতাড়ি করবি। সেই জন্য বি কুল, আরামসে রিল্যাক্স, ব্রেন জ্বলে চলে, হাত না মুখ না, ওসবে কোনো কাজ নাই, হাত মুখের কোনো কাজ নাই। हो गया। अब इसके बाद देखो, अब इसमें से ये तो एक ही है ना, तब ये दिखना ही नहीं, हमको देखना ही नहीं है, इसको हमको दिखना ही नहीं है, है ना?
ठीक है ना, हमको इसको देखना ही नहीं है, तब आप आएगा। अब आप इसमें दो जुड़ा दो 3। अब बता पेन लगाना दरकार हबे, कोनो दरकार नहीं। इतना आसान ही होता है मैथ, ऐसा ही होता है एसएससी में। आ गया। अब चलो देखो बहुत सारा मैथ हुआ है। अब पहले अब दूसरा स्टाइल, अब इसमें से दिया है कुछ और है, हाँ अंतिम डिजिट नहीं है। अब इसमें 8 नंबर जो मैथ है, अब इसमें से क्या लिखा है देखते हैं। अब इसको से क्या होगा, ठीक है, बहुत ही आसान है, छोटा जोक दे दीजिए। हाँ सीधा सीधा इसको याद करना है, बहुत आसान है। अब एक तरीका अपनाएंगे, एक ट्रिक बता देंगे तुम लोग को, ये बहुत आसान है। अब देखो तो ये बताओ इसमें से कितना डिजिट है बेटा, 4 डिजिट है ना। अब 7 को 4 से मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना है। 4 7 কত, তাই না, 4 7 28, হাত থেকে ভেরি গুড 4 7 28, হাত থেকে 8, ভেরি গুড 4 7 28, হাত থেকে 2। अब 3 7 21 আর 2 23, হাত থেকে 2, 7 দুগুণে 14 হয়েছে না, 14 আর 2 16, 7 একে 7 একে 7, এক আবার 7 একে 7, 7 আর কত ছিল তাহলে কত হবে 8। अब हो गया ना। अब कैसे किए, बहुत आसान है। मान के चलो जितना डिजिट रहेगा हमने ऐड कैसे किया। अब 7 7 7 को अब तुम एक काम करना, 7 का ऐसा करना है, पहले 4 से मल्टीप्लाई, उसके बाद 3 से, उसके बाद 2 से, उसके बाद 1 से। अब कर दो, हो जाएगा। ऐसा ही करना है, बहुत आसान है। আমি দেখবই না দেখে আছে কড়া 7 আছে, 4টে 7 আছে, শুরু করে দেবো। দেখ फिर से देख 4 4 7 4 7 3 7 2 7 1 7, কোথা থেকে শুরু করবো 4 থেকে। अब मान के चलो ऐसा है, दिमाग लगाओ, आया समझ में, आया বুঝতে পেরেছিস। যতটা 7 থাকবে ততই শুরু, স্যার যদি এটা ছোটটা প্রথমের দিকে থাকে তাহলে কি কোনো ব্যাপার নয়, যেরকম থাকবে সেরকম। যদি ऐसा रहेगा, अगर ऐसा रहेगा, वो बोल रहे अगर ऐसा रहेगा तो क्या होगा, किसमें फर्क है, हम कर देंगे ना, बहुत आसान है। देख अब रहेगा तो क्या है, क्या फर्क पड़ता है बे? अब ऐसा है ना। अब मान के चलो कितना 5 है, 5। अब 5 से शुरू करो, 5 5 25 5, हाथ থেকে 2, 4 5 20, 20 আর দিয়ে 22, 3 5 15, 15 আর দিয়ে 17, 5 দোকানে 10, 10 আর একে 11, 5 একে 5, 5 আর একে 6। ঠিক আছে, তাহলে ওকে যাও যাও, তাহলে এটা হলো, বল কি সোজা না। ठीक, अब ये ट्रिक को याद रखना है। कैसा ट्रिक, जैसा जितना नंबर रहेगा उतना से शुरू करेंगे। अब मन के 8टा আছে তাহলে 8 দিয়ে শুরু করব, 7টা আছে 7 দিয়ে শুরু করব। बहुत बहुत आसान है, लेकिन আমরা এরকম করে 7 7 করতে করতে অসুবিধা হয়ে যাবে, डिस्टर्ब হয়ে যাবে। ठीक আছে, বুঝে গেল। तुमको ट्रिक याद रखना है, बहुत आसान है। अब हमने दे रहा हो, हमने एक तो मैथ दे रहा, तुम करके दिखाओ, बहुत आसान सा देंगे, है ना। करके करना है, सबको सबको करना है, बहुत आसान देंगे। अब देखो बहुत ही आसान है, दिमाग लगा लो, बहुत ही आसान देंगे। अब ज्यादा नहीं दिए हैं, हम इसके बाद 2 वाला देंगे। अब इसके बाद घुमा देते हैं। अब करके दिखाओ, चलो जल्दी से ट्रिक लगाओ, अब ध्यान से लगाओ। तुम्हारे पास जो जिसके पास ये वाला बुक नहीं है जल्दी से ले लो, और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हो तुम लोग हम लोग को व्हाट्सएप करो, हम लोग दे देंगे। এই বইটা নিঃসন্দেহে সুন্দর বই, যেখানে সবকিছু এত সুন্দর করে জিনিসের জন্য স্পেশালি দেওয়া আছে, খুব ভালো লাগবে। হ্যাঁ, তোমরা যারা এখনো ভাবছো আইকে স্টাডি 4 সেকেন্ডে আসবে, খুব তাড়াতাড়ি চলে এসো, কারণ 20 তারিখের আগে আসলে তোমাদের জন্য 50% ডিসকাউন্ট পাবে অ্যাডমিশন চার্জে। সুবর্ণ সুযোগ, এই নম্বরে ফোন করো, ফোন করে তুমি তাড়াতাড়ি চলে এসো। ঠিক আছে, এখনই ফোন করো, যারা এখনই টেক্সট করবে তাদের জন্য স্পেশাল অফার আছে। बता रुक, हाँ 11,106, ऐसा ठीक है ना, सबका हुआ, बहुत बढ़िया। चलो आगे बोलो, जल्दी बोलो। हाँ 37 बता, 0
अब सबका आया देख बहुत आसान है এখানে পাঁচটা তিন আছে তাহলে 5 দিয়ে শুরু করো কয় দিয়ে শুরু করবা 5 দিয়ে এখানে চারটে আছে তাই 4 দিয়ে শুরু করো बस अब हो गया और कुछ देखना ही नहीं है 4 9 36 4 9 36 এ 6 হাত থেকে 4 3 9 27 যত নাম্বার এটা 4 নাম্বার 4 দিয়ে গুণ 3 নাম্বার 3 দিয়ে গুণ এটা কত নাম্বার 4 নাম্বার না এটা কত নাম্বার 3 নাম্বার 3 দিয়ে এটা কত নাম্বার 2 নাম্বার 2 দিয়ে এটা কত নাম্বার 1 নাম্বার 1 দিয়ে যত নাম্বার তত দিয়ে গুণ ঠিক এখানে দেখ এটা 5 নাম্বার তাহলে 5 দিয়ে গুণ এটা 4 নাম্বার 4 দিয়ে গুণ এটা 3 নাম্বার 3 দিয়ে গুণ এটা 2 নাম্বার 2 দিয়ে गुण এটা 1 নাম্বার 1 দিয়ে गुण कुछ देखना ही नहीं है ठीक है ठीक मैं नहीं तो कौन दे दा हाँ कर सकते हो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल अगर तुम्हारे इंग्लिश स्ट्रांग है मतलब इंग्लिश बैकग्राउंड से हो तो तुम कर सकते हो है ना सब कुछ इंग्लिश में करके उसके बाद जो व्याकरण है हिंदी में कर सकते हो लेकिन ध्यान से देखना है ठीक है ना ठीक अब देखो उसके बाद जो इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान है इसमें लिखा है प्रथम क्या लिखा है पहला प्रथम 75 प्राकृतिक संख्या की जोग कीजिए ठीक है तो प्रथम 75 संख्या पदार्थ जोग करते हैं আমরা সবাই জানি अब इसका एक फॉर्मूला है ठीक है ना अब उसको याद रखना है बस उसी को पहले हम याद करेंगे चलो चलो कौन सी फॉर्मूला है कोई भी प्राकृतिक पहले ये बता प्राकृतिक संख्या का क्या मतलब होता है नेचुरल नंबर बांग्ला बोले प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर बोले तो 1 से शुरू होता है कौन सा शुरू होता है 1 से शुरू होता है ठीक है ना अब 1 2 3 ये प्राकृतिक है लेकिन हमने ए वाला लिखा है मान के चलो 1 2 3 लिखा है ये प्राकृतिक है लेकिन हमने अगर ऐसा लिखा 1 1.1 1.2 1.3 ये वाला नहीं है ना ये समझना है कि नहीं ये दूसरा नंबर है ठीक है अब जो भी है चलो आगे बढ़े अब ये जो प्राकृतिक संख्या होता है 1 2 3 ये होता है अब इसमें से ऐसा करके जोड़ते जाएंगे कैसे ऐसे मान के चलो 1 2 3 4 5 ऐसा करके 75 ऐड करेंगे तो कितना आएगा इसका मतलब ये होता है ठीक है বুঝেছিস हाँ 1 থেকে শুরু করব 1 যোগ 2 যোগ 3 যোগ করতে 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 75 পর্যন্ত যোগ করতে হবে কত পর্যন্ত তাহলে কি হবে সেটাই জিজ্ঞেস করছে এখানে বোঝা গেছে अब ये नेचुरल नंबर कौन सी नंबर नेचुरल नंबर ए अब नेचुरल जो नंबर होता है ध्यान से देखना अब कौन सी वर्ड एन वाला से स्टार्ट होता है एन দিয়ে শুরু হয় সেই জন্য ছোট হাতের এনটাকে আমরা ওটার মানে বলি কি ওটাকে আমরা বলি এটা চিহ্ন কি বলে এটা চিহ্ন प्रतीक क्या बोलते हैं प्रतीक है ना अब जैसे इंटरनेटे चिन्ह से मोबाइले देखाয় इंटरनेटे चिन्ह देखाয় ना ওইটা এইটার চিহ্ন হচ্ছে ছোট হাতের এন अब एन का नाम एन এর মান কত হবে এন এর মান যা খুশি হতে পারে স্যার 1 2 3 4 5 6 যত খুশি বোঝা গেল अब প্রথমে এইটুকু বুঝে নে তাহলে প্রথমে হচ্ছে যে 1 থেকে যোগ শুরু হবে এই সংখ্যাটা 75 পর্যন্ত যোগ করলে কত হবে আচ্ছা 5 পর্যন্ত যোগ করলে কত হয় মনে মনে বলতো ফট করে हाँ ঠিক আছে না আদায় আসি একটা সিস্টেম দেখায় 1 আর 2 যোগ করলে কত হয় 3 তাই না
হয়েছে না? বোঝা গেল? তাহলে আমি এই 3কে লিখলাম 2 3 গুণিত ভাগ 2, তো 3ই হচ্ছে, তাই না? এখানে কটা সংখ্যা আছে? দুটো সংখ্যা আছে, সেখানে আমি 2 লিখলাম, তারপর 3 গুণ করলাম, তারপর 2 ভাগ করলাম, ব্যাপার একই। আচ্ছা 1 2 3 যোগ কর, কত হয়? 6, আমি এটাকে লিখলাম। সেই এটা করা হয় 3খানা সংখ্যা আছে, তাই 3 লিখলাম, তারপর একটা লিখলাম, তারপর 2 দিয়ে ভাগ করে দিলাম, কত হচ্ছে দেখ? 6 হচ্ছে না? আচ্ছা আবার 1 2 3 4 লিখলাম, রাইট? কত হবে? 10 নাকি? 4-এর পরে 5 লিখলাম, আর এটাকে আবার 2 দিয়ে ভাগ করে দিলাম, 10 হচ্ছে না? হচ্ছে না 10? আবার ধর 1 2 3 4 5 লিখলাম, হলো, কত হবে? 15। তাহলে এটা লাস্টে 5, 5-এর পরে 6 লিখলাম, দিয়ে 2 দিয়ে ভাগ করে দিলাম, কত হচ্ছে রে? মনে রাখে একটা জিনিস, ভালো করে বুদ্ধি লাগছে? লাগছে? মনে হচ্ছে কিছু একটা বুদ্ধি লাগায় স্যার? কি মনে হচ্ছে না? এখানে ভালো করে দেখ স্যার, এখানে 2 লিখলেন, এখানে আপনি 2-এর পরে 3 লিখলেন, 2 দিয়ে ভাগ করলেন। এখানে 3 লিখলেন, 3-এর পরে 4 লিখলেন, 2 দিয়ে ভাগ করলেন। এখানে 4 लिखलें, 4 पर 5 लिखलें, 2 দিয়ে ভাগ করলেন। এখানে 5 लिखे है, उसके बाद 6 आ गया, उसके बाद 2 से डिवाइडेड किया, हो गया ना 10। आप मान के चलो 75 बताया, कितना बताया? कितना बताया? अब 75 के बाद कितना आता है? आप गया ना इजी, देख 75 सर 76 लिखिए और 2 से डिवाइडेड कीजिए, हो गया। अब करना क्या है? इतना आसान है ना? ठीक है, अब मान के चलो तुम धीरे धीरे एक मान के चलो, ऐसा कुछ होगा। ए वाला पहले कॉपी में उतार ले, जल्दी जल्दी से लिख ले, उसके बाद बताते हैं क्या चीज है, सीखना है ना? मुखस्त कर लो হবে না, रटना नहीं है, रटना। आप इसको देखो, ये जो जीआई वाला होता है ना, वैसे सीक्वेंस है, बहुत आसान है। मजा तो ऑफलाइन में है ना, ऑनलाइन में कहाँ मजा है ना? अब मिटा दे, ठीक है, हम इसको ध्यान से लिखते हैं, ठीक है? इसी को ध्यान से और भी सीखना है। क्या लिखा है सर ने? हमने कुछ नहीं लिखा है, बहुत आसान लिखा है। ऐसा करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इतने बाद ऐसा करके 10 जोड़े हैं, हमने 2 वाला मैथ दिए हैं, एक करके 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 मन के चलो ऐसे जोड़े हैं, है ना? देखते हैं कितना आसान है, मन के चलो ऐसे जोड़े हैं। अब 100 भी मैथ देगा तुम लोग कर सकते हो, अगर हमने ऐसा 100 भी मैथ देंगे कर सकते हो, बहुत आसान है। अब ये लास्ट वाला डिजिट क्या है? अब 10 है, 10 के बाद कितना आता है बेटा? 11 आता है। अब 2 से डिवाइड करो, ये लास्ट वाला डिजिट कितना है? 40 है। अब 40 के बाद कितना आता है? 41 आता है। अब 2 से डिवाइडेड कर दो। अब 100 के बाद कितना आता है? हाँ 101 आता है। अब 2 से डिवाइडेड कर दो। अब बताओ, आप बोले सर इसको सॉल्व कर कीजिए, अब कर देते हैं। अब इसमें क्या है? इसमें क्या है? 5 11 55। अब इसको ऐड करके देखो 55 ही होता है। कितना होता है? 55 होता है। एक मैथ बताएंगे तुमको, इस ट्रिक को तुमको समझना है, समझना है। एक ऐसा मैथ बताएंगे जो आता है बहुत सारे लोग समझ में नहीं आता है, मतलब ऐसा मैथ हम बताएंगे इसके ट्रिक के ऊपर, है ना? अब इसके कर, अब घटा दीजिए सर, क्या है, इतना आसान है ना? अब बताओ, ये हो गया ना, कितना आसान है। अब इसको भी इससे आसान क्या हो सकता है? अब 5 से मल्टीप्लाई करो, 50 50 50 50 है ना, बिस्किट भी है क्या नहीं क्यों? हाँ 50 50। और जो लोग भी ऐसा मैथ देख के आएगा, हम लोग उसको 50% डिस्काउंट भी देंगे। अब देखो, ये ध्यान से देखो, अब क्या इसमें ट्रिक क्या है? अब 75 बताया हमने, है ना? अब चलो हम तुमको देते हैं, जोर से बोलना है। सबसे पहले हम देखेंगे किसको ज्यादा आ रहा है, जल्दी से आ रहा है, ठीक है ना? हम लिखेंगे, उसके बाद जल्दी से बताना, लेकिन सही बताना, है ना? তাড়াতাড়ি বলাটা পারদর্শী না, সঠিক বলাটা হিরো, ঠিক? चलो देखते हैं कौन जीतता है आज का क्वेश्चन। यही क्वेश्चन हम देंगे, थोड़ा सा 2 क्वेश्चन देंगे, ठीक है? 2 क्वेश्चन देंगे, ध्यान से पहले सुनना। हमने 2 ही क्वेश्चन देंगे, एक में थोड़ा सा हम ट्रिक लगाएंगे और एक में सीधा सीधा देंगे, जैसे किए हैं वैसा ही देंगे, और एक में थोड़ा सा ट्रिक लगा देंगे, थोड़ा सा एक ट्रिक लगा देंगे, बस ध्यान देना ठीक से, राइट? हाँ आएगा ना? चलो देखते हैं, बहुत ही आसान देंगे। अब बहुत ही आसान देंगे, मान के चलो, कीजिए बेटा, अब बहुत ही आसान देंगे।
करो, सब लोग करो, हर एक को आना चाहिए, जो भी हो, ऑनलाइन हो रहा है, ऑफलाइन हो रहा है, जो भी हो रहा है, हर एक को आना चाहिए। और हमने ट्रिक बताया था। हाँ, ये वाला बता। बहुत 20 मिनट। अब बता, वैसे नहीं बताना है, नंबर से बताना है ना, 200 ऐसा करके बताना है, वो तो समझ में आएगा ना। हाँ हाँ, ऐसा बताना है। अगर बात ऐसा बताओ जो समझ में आ रहा है तो उसको टैलेंटेड कहता है। वही तो हमने बताया क्या, हमने बोला तुमको ध्यान से, बोला फिर से गलत कर रहे हो। हमने बताया ध्यान से देखना, हम ट्रिक देंगे। हमने बोला ना दो, एक मैथ सीधा देंगे, एक मैथ ट्रिक देंगे, ट्रिक दिए, ठीक से देखो। गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, कोई तो यस ऐसा होगा। ये इसमें ए वाला आएगा बेटा, हमने तो इसीलिए बोले कुछ ट्रिक तो हम देंगे। क्या दिए बताओ, इसमें देखा, ध्यान नहीं दिए तुम लोग। हमने यहाँ पे एक नहीं जोड़े, एक नहीं जोड़े हैं। ऐसा ही ना होगा, आसान तो होगा लेकिन ध्यान से देखना है ना, ध्यान से देखना है। দূর থেকে লাগে সুন্দরী, কাছে যে ভালো লাগবে না, তাই দূর থেকে দেখে অঙ্ক পড়াতে না, কাছে দেখতে হবে। हमने তোকে বলেছিলাম যে আমি একটা চালাকি করব, চালাকি কি স্যার এখানে ওয়ান তো দেননি, এক তো আমি দিয়েছি কি রে, সব জায়গায় এক দিয়েছি, এখানে এক দিয়েছি, তাহলে এখানে শুধু একটা কম আছে, তোকে একটা নিয়ে করতে হবে কিন্তু পরে একটা কমে দিতে হবে। আর ऐसा ही तो आएगा ना, অঙ্ক তো পরীক্ষা হলে এই তো ঘাবড়ে যাবি। তাহলে কি করতে হবে, एक मैथ को बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार। इसी बुक को अगर किसी ने, अगर एसएससी होने तक किसी ने अगर 3 या 4 बार कंप्लीट कर सकते हो, अगर बता देते हैं 40 में 40 आएगा, एकदम 40 में 40 आएगा। लेकिन इसी को कंप्लीट करना है, किसी भी मतलब हद तक जाओ, इसी को 4 बार कंप्लीट करो। और जो हिंदी हमने बताया वैसा ही सिलेबस हम बता देंगे, जो क्या क्या आएगा उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, आप एक क्वेश्चन जो आता है जीआई में, अब इसी ट्रिक के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा जीआई में। क्वेश्चन तुम लोग सुना है लेकिन अब उसमें से तुम्हारा नॉलेज नहीं है, ठीक है। हमने बताया एक ठो मैथ, हमने बताया देखो 1 2 3, अब मान के चलो 10 तक गिनेंगे, राइट। हाँ, हम ट्रिक बता रहे क्या चीज है, ध्यान से सुनना। ए वाला मैथ तुम लोग को अब ए वाला दिए हैं, ठीक है, कुछ नहीं करना नहीं, हम बता रहे क्या क्या लिख, कुछ और दिखा समाज। तो यहाँ पे 40 लोग हो तुम लोग अभी, तो मान के चलो 40 জন আছিস, ঠিক আছে। একটা প্রশ্ন ছিল যে একটা ঘরে 40 জন আছে, কজন আছে, বা 10 জন দিয়ে শুরু করি, হ্যাঁ তাহলে ভালো হবে। একটা ঘরে 10 জন আছে, কজন আছে, সবাই সবার সাথে হ্যান্ডশেক করবে। কি করবে, সবাই সবার সাথে হ্যান্ডশেক করবে বা মোলাকাত করবে, যা তা মাতা, তো হ্যান্ডশেক করবে। তাহলে মোট কতবার হ্যান্ডশেক হবে, पहले ध्यान से सुनना। 10 लोग है, कितना लोग है, अब 10 लोग है, एक दूसरे से हैंडशेक करेंगे, लेकिन एक दूसरा डबल नहीं होगा, मतलब हमारे साथ तू 2 बार হবে এরকম না, सब लोग सबके साथ करेंगे लेकिन डबल नहीं होगा, है ना। तो कितना हैंडशेक होगा, दिमाग लगा, उतना आसान नहीं है बेटा। अब तो कोई इजी बता दे। अच्छा, अब तुम तीनों आओ, आजा जल्दी आओ, या थोड़ा डेमो देते हैं कैसे होता है, दिमाग लगा, हाँ दिमाग लगा, यहाँ पे आ। अब तीनों है, आजा यहाँ आजा, कैमरा सामने, अब आजा खड़ा हो, अरे लाइन जो है, हाँ अब देखो, अब तीनों लोग हैं, हमने बताया तीनों लोग हैंडशेक करना है ना। अब तुम करो, हैंडशेक करो, मिलाओ, 1 2, हाँ तुम खड़ा हो जाओ, अब तुम करो 3, अरे उसके साथ नहीं करना है ना, वो तुम्हारे साथ किए ना,
ও এই ও তো তোর হাতে করেছে, তাহলে হয়তো তুই করতে পারবি না, তাহলে আর হ্যান্ডশেক হবে কি? कितना हुआ? 3 यार, है ना? अब चलो और एक आजा, तू आजा, पहले डेमो देते हैं। खड़ा दाड़ा दाड़ा, अब तू कर, गिन गिन, 2 3 हो गया ना? ठीक है, अब तू कर, 4 5, अब चल, हाँ अब तू कर, 6 हो गया ना? और होगा? और नहीं ना होगा? आजा बैठ जा, अब क्या हो रहा दिखा रहा है। अब तीनों जब आया 3 हुआ है, जब चारों आया 6 हुआ है। अब कैसे हो रहा है? बहुत ही आसान है, देखो ध्यान से, हमने यही वाला तो ट्रिक सिखाया तुमको, तुमको ध्यान नहीं दिए। अब 3 जो आया है, 3 व्यक्ति आया है ना? तो अगर हैंडशेक करेंगे, जो पहले वाले इंसान है वो हैंडशेक करेंगे, जितना भी लोग रहेंगे उससे एक काम है हैंडशेक करेंगे, है ना? क्या बताओ? अगर तीनों रहेंगे तो 2 हैंडशेक होगा, अगर 10 रहेगा तो वही वही। आप देखो, तीनों रहेगा तो 2 हैंडशेक करेगा, इसका मतलब तुमको 1 से लेके 2 तक ऐड करना है। अगर चारों इंसान रहेगा 3 तक 3 हैंडशेक करेंगे, है ना? अगर 10 इंसान रहेगा तो पहला हैंडशेक कितना होगा? 9 में होगा, তাহলে 9 পর্যন্ত তোকে যোগ করতে হবে। কত পর্যন্ত যোগ করতে হবে? 9 পর্যন্ত। अब 9 से যোগ कर दो, 4 9 10 2, कितना आता है रे बेटा? 45। अब इसमें देखो, इसमें भी 3 आता है, इसमें भी 3 4 2, इसमें भी कितना आता है? 6 आता है। वैसा ही हो रहा था, आया समझ में? যতজন লোক থাকবে তার থেকে এক ঘর কম হবে। अब हमने बताया, अब थोड़ा बड़ा कर दिया, मान के चलो 40 लोग है। कितना लोग है? अब कितना हैंडशेक होगा? नहीं तो एक थप्पड़ लगाएंगे। 39 कैसे होगा? 39 तक ऐड करना है, 39 तक ऐड करना है। अब करो, करके दिखाओ कितना आ रहा है, चलो करो। 40টা লোক থাকলে 39 পর্যন্ত যোগ করতে হবে। কি বললাম? হ্যাঁ, এই ট্রিকটা কেউ আমরা আগে অঙ্কটা করতাম মুখস্থ বিদ্যার মতো, কিন্তু এটা শিখতে হবে। বন্ধ কর। तेरा मोबाइल बैंड है आज के लिए, क्लास के बाद डिपॉजिट कर देना। 1 2 3 करके 39 हुआ है, ठीक है? तो आप इसे करो, कितना बार है मेरा? 780। इतना बारी होगा। ये वाला मैथ आए थे 2 साल पहले, ठीक है समझा। 2 साल पहले ये वाला मैथ आए थे डब्ल्यू में, याद करो, क्वेश्चन देखना। ये वाला मैथ आए थे, बहुत सारे लोग को हुआ नहीं है, लेकिन बहुत आसान था। कौन सा ट्रिक था? यही वाला। मतलब तुमको যতগুলো লোক থাকবে তার থেকে একটা কম লোক নেব, তাহলেই মিলে যাবে। তবে যোগ করতে পারি তো। अगर हमने बताया, अब बताओ, मान के चलो एक रूम में 9 लोग है, कितना है? 9 लोग है। अब बताओ कितना हैंडशेक होगा? 36। चले बात। अब एक घर में 6 लोग है, कितना होगा? बोल। 6টা লোক, তাহলে 5 পর্যন্ত যোগ করতে হবে। 5 গুণিত 6 ভাগ 2 কত হয়? 15। 3 আর 6 15 ना, 3 5 15। सुनाई दे रहा है हमको? अच्छा ना, ताहले चलो हम लोग, और कितना बाज रहा है? तो हम लोग फिर भी आज সন্ধ্যায় আবার ক্লাস করাবো তোদেরকে, ঠিক আছে? আজকে দুপুরে ক্লাসটা, সানডে যেহেতু আজকে দুপুরে ক্লাসটা অফ থাকবে, ঠিক? সন্ধ্যাবেলায় ক্লাস করাবো, ঠিক আছে? আচ্ছা, তোদের হোমওয়ার্ক থাকলো যে শব্দগুলো আমি লিখলাম, ঠিক আছে? সুবিদ দাসের বইয়ে দেখবি, সুবিদ দাসের বই আছে, তাদের বইয়ে দেখবি ইকাই নাম্বারকে পর, মানে একক সংখ্যার উপর অনেকগুলো অঙ্ক আছে, সেই অঙ্কগুলো সমাধান করে নেওয়া। মানে होमवर्क, व्हाट इज द होमवर्क? पहले समझना, समझ ले। 10 मैथ कराना है। कितना मैथ? 10 কোশ্চেন করবি, সমাধান করবি। যে কোনো 10টা প্রশ্ন যে কোনো বই থেকে টুকে আনবি, যেটা অন্তিম সংখ্যা, मतलब একক সংখ্যা বা শেষ সংখ্যার উপরে অঙ্কটা আছে বই থেকে দেখে। সুবিদ দাস খুলবি, অনেক অঙ্ক পেয়ে যাবি, ঠিক আছে? চঞ্চল ঘোষ খুলবি, তাও পাবি, বা ইন্টারনেট খুলবি, এরকম অঙ্ক 10টা করে এনে
আমাদেরকে দেখিয়ে দিবি, ঠিক আছে? বোঝা গেল, রিভিশন ক্লাসে দেখে নেবো। চলো আপাতত এই পর্যন্ত, ছুটি। তোমরা যারা আসতে চাইছো লাইভ ক্লাস, আমরা চেষ্টা করব কিছু লাইভ ক্লাস দেওয়া সরাসরি, খুব তাড়াতাড়ি শিডিউল দিয়ে দেবো যে মর্নিংয়ে, হ্যাঁ, আমার দুপুরবেলায়, রাত্রিবেলায় কখন লাইভ ক্লাস হবে, আমরা কিন্তু সরাসরি লাইভ আনবো। যাই হোক, কেমন কি লাগলো অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানিও।